setting me free. This Holy Ghost power is setting me free. This very hour is flooding my soul, is making me whole. I've taken my heart down from the willow tree. My heart is singing no victory. My past is forgiven. My home is in heaven. All sorrow is gone. Glory is come. Now I am free. I've taken my heart down from the willow tree. My heart is singing no victory. My past is forgiven. Past is forgiven. My home is in heaven. All sorrow is gone, the glory is come, and now I am free. I've taken my heart down from the willow tree. My heart is singing no victory. My past is forgiven. My past is forgiven. My home is in heaven. My home is in heaven. All sorrow is gone. All sorrow is gone. The glory is come, and now I am free. Hallelujah. Amen. तूने किया खाली अपने आप को। आज हम जबकि प्रभु भोज में शामिल होने वाले हैं, याद रखें कि परमेश्वर ने अपने आप को केवल एक कारण से ही खाली किया, और वो कारण शायद समझने में हमें कई युग लग जाएंगे। और उसने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, नाश नहीं होना, अनंत जीवन पाने के लिए। सबसे महान तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे
जीवन की सारी महिमा सुबह प्रभु को दें। कोई भी चीज रोक कर ना रखें, सारी महिमा के वो योग्य है। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जग को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है।
ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी महिमा करे। वो प्रभु जो कभी छोड़ता नहीं, जो दौड़ चलाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आज सुबह होने दे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जितने यहां प्रभु की उपासना कर रहे हैं, प्रभु हमारी स्तुति को देखता और उसको ग्रहण करता है। वो तो देने वाला परमेश्वर है जो चंगाई को देना चाहता है। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं। कितनी बार हम सोचते हैं कि हम पूरी तौर से स्वस्थ हैं, कितनी बार हम सोचते कि हमें कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन ऐसे समय में शैतान छुपकर काम करता रहता और हम उसके काम से अनभिज्ञ हमें नहीं होना है, क्योंकि वचन ने हमें सब बताया है, तुम शैतान के काम से अनजान नहीं हो। लेकिन हमारा एक परमेश्वर है जो हमें, वो याहवे परमेश्वर जो हमको चंगा करता है। I am the Lord who healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. अपने अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें और इस गीत को गाएं। प्रभु कह रहा है, I am the Lord who healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease, every disease. I am the Lord your healer. फिर से गाएं। God says, I am the Lord who healeth
Thank you, Jesus. I am the Lord, your healer. I sent my word, I receive and heal to disease. I am the Lord, your healer. You are the Lord who healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed to disease. You are the Lord, my healer. Sing it again. You are the Lord who healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. First say, guy, you are the Lord. You are the Lord who healeth me. I believe you are the Lord. You're my healer. You sent your word and healed my disease. हर एक समस्या चंगी हो जाए. You are the Lord, my healer. प्रभु आपके ऑफिस में भी चंगाई दे. You are the Lord who healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. First again, you sent your word and healed my disease, every disease. You are the Lord, my healer. Yahweh, 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 come and do what only you can do. Yahweh, 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 come and do what only you can do. Yahweh, you are my Lord. Yahweh, 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 come and do what only you can do. प्रभु तू आ और उस काम को कर जो केवल तू ही कर सकता है और कोई नहीं. Yahweh, 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 come and do what only you can do.
father to the fatherless. He is the husband to the widow. He is a cleansing to the leper. He is life to the dead. He is sight to the blind. Oh, He is strength to the weak. Kura baba baba baba. चरणों में तेरे आमादे हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे आमादे हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, अपने स्थानों में हम बैठकर प्रभु की उपासना करें। Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आज की सुबह के लिए। Amen. आमीन। Are we here this morning? क्या आज सुबह हम इस स्थान पर हैं? Hallelujah. हालेलुया। We sing the song, This is the Day.
the Lord has made. हम उस गीत को तो गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Yes, it is God's day. सच बात है, आज प्रभु का दिन है। Thank God that we are here in His house प्रभु का धन्यवाद हो, हम उसके आज घर में पाए जाते हैं and we see the world, what is happening all around us. और हमारे चारों ओर दुनिया में जो चीजें हो रही उसको हम देखते हैं। Disaster everywhere. चारों तरफ बड़ी दुर्घटनाएं, आपदाएं हैं। People are being displaced. लोग अपनी जगहों से स्थानांतरित किए जा रहे हैं। Once they had everything, lost everything in overnight. किसी समय उनके पास सब कुछ था, लेकिन रातों रात सब कुछ बह गया। Jesus is saying these signs will follow. यीशु मसीह ने बताया है कि उसके आने के समय का चिन्ह ये सब कुछ होगा। It is God's desire that His kingdom come. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसका राज्य आए। A kingdom where justice will reign. एक ऐसा राज्य जहां पर न्याय राज करता हो, Righteousness will reign. धार्मिकता जहां पर राज करती हो। Jesus taught us to pray. यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। And He said, when you pray, say, your kingdom come. और उसने कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो कि तेरा राज्य आए। I know the world is being broken. मैं जानता हूं कि आज दुनिया टूट रही है। And if this is no time for us to sleep, but be awake in the spirit. परंतु ये समय हमारे सोने का नहीं, परंतु आत्मा में जगे रहने का है। Awake thou that sleepest and arise from the dead. हे सोने वाले, जाग और मुर्दों के बीच से जी उठ। Christ will give you light. तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Amen. आमेन। Almost every sign is pointing to the soon return of Jesus Christ. लगभग हर एक चिन्ह जो हो रहे हैं वो यीशु मसीह के जल्द आगमन की ओर इंगित कर रहे हैं। And we have come to the very close of the coming of Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बहुत करीब आ गए हैं। And the Bible says, और बाइबल कहती है, when you see these things coming to pass, और जब तुम इन चीजों को होते देखो forsake not your gathering together तो इस रीति से अपने इकट्ठा होना ना छोड़ना, as the manner of some has become. जैसे कितनों की रीति है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, excuses won't count that day. उन दिनों में बहाना काम नहीं करेगा। When you have energy, when you have bodies working, जब आपके पास में शरीर काम कर रहे हैं, give it that time to God. वो समय परमेश्वर को दें। Amen. आमेन। Young people's meeting, young people come there. जवानों की सभा में जवान लोग आएं, Ladies meeting, ladies must come. महिलाओं की सभा में महिलाएं आएं। It's not an option. ये विकल्प नहीं है, It is a command of God. ये परमेश्वर का हुक्म है Gather together. कि इस रीति से इकट्ठा होना। That's the only way वही एकमात्र तरीका है we can keep ourselves awake. हम अपने आप को जागृत रख सकते हैं। The early church gathered together आरंभ की कलीसिया एक साथ इकट्ठा होती थी, daily, रोज होती थी, and they broke bread from और house वे to house, घर घर जाकर रोटी को तोड़ते थे, and they prayed together. और वे एक साथ प्रार्थना करते थे, They learned together, और वे साथ में सीखते थे, and the church grew. और कलीसिया उस कारण से बढ़ गई। Amen. Amen. You say, I don't have any part in it. आप कहते हैं कि मेरा इसमें कोई भी भाग नहीं है। No, friends. नहीं दोस्तों, If you become a dead part in the body, यदि आप शरीर के मृत भाग बन जाएंगे, then what you can know how the body will look like. तब फिर आप जानेंगे शरीर कैसा दिखता है। Everything has to be awake, हर एक चीजों को जागृत रहना है, alive. जीवित रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Everyone must do his part. हर एक को अपना भाग पूरा करना Don't है। think others are not doing it, so I won't do it. और ये ना सोचे कि दूसरे नहीं कर रहे इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। Remember, याद रखें, 2 men walking. दो लोग जा रहे थे, One is caught up, one is left behind. एक उठा लिया गया, एक पीछे छोड़ दिया गया। 2 women working. दो औरतें काम कर रही थी, One is taken, one is left behind. एक को उठा लिया गया, दूसरी को छोड़ दिया So गया। let's be in that category when we get caught up with Jesus too in the air. और इसलिए हम उस वर्ग में पाए जाए जहां पर बादलों में जब यीशु आए तो हमें वो अपने साथ उठाए। The last lap. आखिरी जो दौड़ का भाग, Hallelujah. हालेलुया, Run it उसे दौड़ें with all your might. अपने सारे शक्ति से। You shall love the Lord तू प्रभु से प्रेम कर with all your heart, अपने सारे दिल with से, all your strength, अपने सारे शक्ति with से, all your might. अपने सारे सामर्थ्य से। Hallelujah. Amen. 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 And then और तब love your neighbor
अपने पड़ोसी से प्रेम कर as yourself. अपने ही समान। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. Amen. These are not difficult things. ये कठिन चीजें नहीं है His commandments are not grievous. और ये परमेश्वर की आज्ञा लिखा है वो कठिन नहीं है। God will give us grace to obey. परमेश्वर अनुग्रह देगा उसका पालन करने के लिए। Amen. आमेन। Will we say, क्या हम ऐसा बोल yes, I पाएंगे? have decided हाँ, मैंने ये तय कर लिया to है, follow Jesus. यीशु के पीछे मैं चलूंगा, No turning back. अब मुड़ने का नहीं। Amen. आमेन। It's no time to turn back now. अब मुड़ने का वक्त नहीं It's है, time to finish our course. परंतु अपनी दौड़ को पूरा करने का है। Hallelujah. हालेलुया। Church all over the world. कलीसिया दुनिया भर में चारों तरफ, There is a revival. वहां पर एक आत्मिक जागृति है। Amen. आमेन। We should not be deprived of that move. हमें उस प्रभु के कार्य से वंचित नहीं होना है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn our Bibles आइए बाइबल को खोलें, to 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों 13th chapter. उसका 13 अध्याय। Shall we read from verse 1? पहली आयत से आइए हम पढ़ें। This is the third time I am coming to you. In the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। I told you before and foretell you, as if I were present the second time, and being absent now I write to them which hithertofore have sinned, and to all others that if I come again, I will not spare. जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। Since ye seek the proof of Christ speaking in me, which to you word is not weak, but is mighty in you. क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। For though he was crucified through the weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God towards you. वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। Examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। This is one church, there is a lot of problem. कुरिन्थ की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जहां बहुत सी समस्याएं थी। You find Paul writing to other churches. आप पाएंगे पौलुस दूसरी कलीसियाओं को भी लिखता है। He is not dealing with any problems, वहां पर वो not किसी much of them. बहुत ज्यादा किसी समस्याओं का निराकरण करते हुए नहीं दिखता है। Instead he is giving them exhortation and instructions to follow Christ. परंतु मसीह के पीछे चलने के लिए वो उनको निर्देश देता है, सिखाता है। Here he is writing and telling the people, वो यहाँ पर लिख रहा है और लोगों से कह रहा है, examine your own selves. अपने आप को जांचो, Prove your own selves. अपने आप को परखो Whether you are in the faith, कि विश्वास में हो। know ye not क्या तुम जानते नहीं your own selves अपने विषय में how that Jesus Christ is in you, कि यीशु मसीह तुम में है, except you be reprobates. नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। Paul is writing to the believers in the church, पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को लिख रहा है and he is advising them to examine their own lives. और वो उनको कह रहा है कि वे अपने आप को परखें, Examine your own self and अपने examine your own faith. अपने स्वयं को और अपने स्वयं के विश्वास को परखें। Very often it's so easy to look at others.
बहुत सी बार ये आसान रहता है दूसरों की जिंदगी को देखकर चलना, And not only to look at others, we talk about them. और न केवल हम दूसरों के बारे को देखते हैं परंतु उन दूसरों के बारे में एक दूसरे से बात भी करते हैं, And that will not benefit us in our spiritual life at all. और वो चीज हमारे आत्मिक जीवन में कभी भी लाभ नहीं देगी। Jesus said, यीशु ने कहा, first take out the beam from your own eye. पहले अपनी आंख से उस लकड़ी के लट्ठे को निकाल, Then you shall see clearly. तब तुझे साफ साफ दिखेगा। Look at others. दूसरों के आंख को देखने के लिए It will not be of any benefit if we keep on looking at others, and we need others to change. इसका कोई लाभ नहीं यदि हम दूसरों की ओर देखते रहें और चाहें कि वो बदल जाए। There's an old song which says, एक पुराना गीत कहता है, it's not my brother, not my sister. मेरा भाई नहीं है वो, ना मेरी बहन है वो, It's me, O Lord. परंतु वो व्यक्ति मैं हूँ प्रभु। I stand in the need of prayer. मुझे प्रार्थना की जरूरत है। Amen. आमेन। Wise man. बुद्धिमान मनुष्य, The spirit of man is like a candle. मनुष्य का जीवन एक दीपक के समान है। The spirit, उसकी आत्मा it searches his heart. उसके प्राण को, हृदय को जांचती We है। all know God searches our heart. हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचता है। It is good to examine our own self. अच्छी बात है अपने अपने जीवन को जांचना। Nowadays, you got so many instruments to check your own blood pressure. आजकल बहुत से बिजली के उपकरण हैं जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को जांच सकते हैं। You can check your sugar आप अपने शुगर के स्तर को जांच सकते हैं, and so many other things. और भी बहुत से उपकरण निकल आए हैं। And by all those means, man has able to control himself, और इन सब चीजों keep के द्वारा himself in health. मनुष्य अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रख पाया है। People go for examination to the doctor, a general checkup, लोग एक सामान्य चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं and they pay some money to get checked up. और वे कुछ पैसा देते हैं कि मेरी जांच कर दो। We spend money. हम धन उसमें व्यय करते हैं And whatever the doctor tells us, we obey. और जो कुछ भी डॉक्टर कहता है हम उसका पालन करते हैं। Sometimes he might tell us to take certain medicines also और कभी कभी डॉक्टर में कुछ दवाई खाने के लिए भी बोलता है for our good. हमारे भलाई के लिए। Thank God for medical science. प्रभु का धन्यवाद हो मेडिकल साइंस के लिए। Amen. आमेन। It has relieved man of lot of pain. दवाई ने मनुष्य जाति को उसके दर्द से बहुत छुटकारा दिया है। Blood transfusion was not known earlier. पहले खून का स्थानांतरण नहीं जाना जाता था। Putting the bones together हड्डियों को आपस में जोड़ना लोग जानते नहीं थे to make men walk again. ताकि मनुष्य फिर से चल फिर पाए। God gave them wisdom. परमेश्वर ने उन मनुष्यों को बुद्धि दिया। Thank God for medical science also. प्रभु का धन्यवाद हो मेडिकल साइंस के लिए भी। Amen. Amen. That is wisdom of God. ये परमेश्वर का ही बुद्धि है So that man will be relieved from his pain. ताकि मनुष्य अपने दर्द से निवारण पाए। We as Christians must allow the Holy Spirit to search us. हम मसीह होने के नाते पवित्र आत्मा को अनुमति देना चाहिए कि वो हमें जांचे। If you go to the doctor and say, God, doctor, guess what I have? यदि आप डॉक्टर के पास जाकर ये कहें कि डॉक्टर साहब अनुमान लगाइए मुझे क्या बीमारी है। You have done a lot of studies. आपने बहुत पढ़ाई की है। Guess what is the problem with me? मेरे शरीर की बीमारी का नाम बताइए। Either the doctor will get mad, या तो डॉक्टर पागल हो जाएगा, or he'll refer us to mental hospital. या फिर वो मानसिक अस्पताल में हमें भेज देगा। Sometimes we are like that only. We come to God कभी कभी हम ऐसे ही प्रभु के पास में जब आते हैं and we talk about other people. और हम दूसरों के बारे में बात करते हैं। Like the Pharisee who stood up and said, जैसे उस फरीसी के समान जो खड़ा होकर बोला, Lord, I am not like other people are. हे प्रभु मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं I हूँ। don't cheat, I don't rob. मैं लूटता नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं करता, I pray. मैं तो प्रार्थना करता I हूँ, give tithes of everything I मैं have. हर चीज का दशमांश जो मेरे पास है देता हूँ। And also, Lord, और साथ में प्रभु I am not like that man sitting at the back. हम पीछे, मैं उस पीछे बैठे आदमी के समान भी मैं नहीं हूँ।
Bible says बाइबल कहती है God never heard that prayer. परमेश्वर ने उस मनुष्य की प्रार्थना नहीं सुनी। The publican who is sitting at the back, और जो चुंगी लेने वाला पीछे वहां बैठा था, he smote his breast, उसने अपनी छाती को पीटा, said, God have mercy on me. और कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, I am a sinner. मैं एक पापी मनुष्य हूँ। Look inside. अपने स्वयं के अंदर देखें, You'll find a lot of garbage. आपको बहुत सा वहां गंदगी दिखेगी। Amen. आमेन। Sometimes you think your house is very clean. कभी कभी आपको तो लगता है कि आपका घर बहुत साफ सुथरा है, When shifting time comes, और जब घर का सामान हटाकर दूसरे घर ले जाते हैं, you know what happens. तब आपको पता है वहां क्या होता है। From where on the earth all these things come out? पूरी दुनिया से कहां से इतना कूड़ा वहां इकट्ठा था। That's what we need to do with our own heart. हमारे स्वयं के हृदय के साथ भी हमें वही करना है। Amen. आमेन। Check our heart. अपने स्वयं के हृदय को जांचना Every है, evil thing comes out of this heart. क्योंकि हर एक बुराई इस हृदय के अंदर से ही निकलती है। Hatred and murder. चाहे वो नफरत हो, चाहे हत्या हो, And you name any sin, आप कोई भी पाप का नाम ले लें, comes out of the heart. वो दिल से ही निकलता है। What is happening today? आज क्या हो रहा है? The other day we read in the papers, पिछले दिन अखबार में हमने पढ़ा, man shot his own daughter एक आदमी ने अपनी ही बेटी को मार दिया, because she is doing very well in sports. क्योंकि वो खेल कूद में बहुत अच्छा बढ़ रही थी, And she was earning more than him. और वो अपने पिता से ज्यादा कमा रही थी। Jealousy on her own child. अपने ही बच्चे पर जलन। Heart is desperately wicked. ये हृदय बहुत ही दुष्ट है। And God says, और परमेश्वर कहता है, give me your stony heart. मुझे अपना पथरीला हृदय दे दे, In exchange, I will give you a heart of flesh. इसके बदले मैं तुझे एक मांस का नरम हृदय दूंगा। Amen. आमीन। Psalmist David says, भजन का लेखक दाऊद कहता है, Psalm 139, भजन संहिता और 39, verse 23. और उसका 23 आयत, It says, search me, O God, try me, know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the path everlasting. हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। Amen. आमीन। The prayer of this man is for himself. इस मनुष्य की प्रार्थना अपने स्वयं के लिए है, Search me. और वो कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. Sometimes this heart becomes so evil that mouth begins to speak. कभी कभी ये हृदय इतना बुरा हो जाता है कि ये मुंह बात करने लगता है, And what it speaks, it doesn't know. और ये क्या बात कर रहा है उसे नहीं मालूम, It's not life, it is death. और वो जीवन की बातें नहीं, मौत की बातें करता है। Why should we bring upon our own selves trouble? हम क्यों अपने स्वयं के जीवन में संकट लेकर आए? But God has shown us the way. जब परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है, Search me. वो कह रहा मुझे जांच कर जान ले। Amen. आमीन। We have so many things. CT scan, what all scan. आज दुनिया भर के स्कैन आज दुनिया के अंदर में पाए जाते हैं, And you know, something happens, they find out what the problem is. और जांच कर वे लोग समस्या को जान लेते हैं। So if people are willing to go through all the scans, लोग तमाम उन परीक्षणों से गुजरने तैयार हैं। what about a spiritual life? अपने आत्मिक जीवन के बारे में क्या One है? day, Sunday, few hours, it is not enough. सप्ताह में एक रविवार के कुछ घंटे काफी नहीं है। Remember, we will be very soon into the 8th month. और याद रखें कि बहुत ही जल्द हम इस नए साल के 8वें महीने में प्रवेश कर जाएंगे। And how many souls have we brought to Christ? हमने इस दौरान मसीह में कितनी आत्माओं को लेकर आए हैं? How many people we have told about Jesus? कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है? How many times we have interceded and prayed for others to be saved? कितने बार हमने मध्यस्थता की है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को बचा ले, उद्धार If दे। nothing is happening, then we need a change of heart. यदि कुछ भी नहीं हुआ है तो हमें हृदय के परिवर्तन की
जरूरत है। Not others, Lord, search me. प्रभु दूसरे नहीं, मुझको परख कर जांच ले। Amen. Hallelujah. Amen. The all searching eye of God. परमेश्वर की सब जांचने वाली आंख, To open all the rooms of a heart. हमारे हृदय के सारे कमरे उसको खोल कर दिखा दे। Sometimes there are certain rooms which we keep for our own self. कभी कभी हृदय के कुछ कक्ष हम अपने लिए रखते हैं। And you tell, and the Lord searches, no, not that one, Lord. और जब प्रभु जांचता है, हम उस कमरे को नहीं जांचने देते। Give them all to Jesus. गीत कहता है सब कुछ यीशु को दे दो। Hallelujah. Hallelujah. Give all the keys of all the rooms. अपने जीवन के सारे कुंजी उसी को सौंप दो। Make him Lord of our life. और उसको अपने जीवन का प्रभु बना लो। Examine yourself अपने आप को जांचो whether you are in the faith. कि विश्वास में हो कि नहीं हो। That's a very tough ये कठोर question. कड़ा सवाल है, And that too asking believers. और वो भी सवाल विश्वासियों से। Examine yourself, your life doesn't show it. विश्वासियों से कह अपने जीवन को परखो और जांचो कि वे विश्वास में हो कि नहीं। Because your life, your attitude don't show. तुम्हारे विश्वास और आचरण से जो वो नहीं दिखता That you're walking in faith. कि तुम विश्वास में चल रहे हो। Amen. आमीन। One place, big meeting, एक जगह में बड़ी मीटिंग हो रही थी, and people are praising and worshiping. लोग स्तुति और आराधना कर रहे थे। And after the praise and worship, स्तुति और आराधना के बाद committee meeting. वहां पर कमिटी का मीटिंग भी हुआ Battle begins. और वहां पर लड़ाई शुरू हुई। All scripture is gone. सारा पवित्र शास्त्र चला Holy गया। Spirit is gone. पवित्र आत्मा भी नहीं है Their own spirit takes over. और उनकी मनुष्य की आत्मा हावी हो जाती है। They must examine themselves whether they are in the faith. उनको भी जांचना चाहिए कि वो विश्वास में है कि नहीं। If you are in the faith, our life will show. यदि हम विश्वास में हैं तो हमारा जीवन उस विश्वास को दिखाएगा। Amen. आमीन Amen. आमीन। We don't become perfect in one day, I know that. मैं जानता हूं एक दिन में हम सिद्ध नहीं होते हैं। There are seasons. वहां पर काल समय गुजरते हैं, Some take time, कुछ वक्त लगता है, but they are persevering to become perfect. परंतु वो सिद्ध बनने के लिए रोज यत्न कर रहे हैं। Every day, हर दिन it will be victory. आपको Amen. जय वो देता है। Hallelujah. Hallelujah. Sin shall not have dominion. पाप तेरे ऊपर राज्य हुकूमत नहीं It will करेगा, not rule over you. न तेरे जीवन पे राज करेगा। Amen. आमीन। Christ has given us the victory. क्योंकि मसीह यीशु ने हमें वो जय दिया है। Search your heart. अपनी हृदय को जांचें। Coming to the Lord's table, प्रभु के ब्यारी को लेने आज सुबह हम यहाँ आए हैं। we say like this. हम इस प्रकार से We कहते हैं, read the scripture पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं before we take the Lord's table. प्रभु की ब्यारी में जाने से पहले Examine yourself. अपने आप को स्वयं को परखें। If we confess before God, this table will become a blessing. यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं प्रभु के सामने तो ये मेज हमारे लिए आशीष का कारण बन जाती है। Amen. आमीन। And the Bible is so strong. और बाइबल दृढ़ता से कहती है, If any man eats this table unworthily, यदि कोई भी इस मेज में अनुचित रीति से शामिल होता है, he eateth and drinketh damnation unto himself. वो खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है। He doesn't discern the Lord's body. वो प्रभु की देह को नहीं पहचानने के कारण। None of us are perfect. हम में से कोई भी जन सिद्ध नहीं है। Amen. It's not that. ऐसी बात नहीं है। It's our attitude we come to the Lord's table. हम कैसे आचरण के साथ प्रभु के मेज में आते हैं। If we need to forgive one another, forgive. यदि एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है, माफ कर दीजिए। It's not hard. कठिन नहीं है। God will give you grace to ask forgiveness. प्रभु आपको अनुग्रह देगा कि आप जाकर क्षमा मांग सकें। Amen. आमीन। Say sorry. माफ करना Brother. कहे भाई। That can break, the hardest wall can break by forgiveness. सबसे मजबूत दीवार को भी तोड़ सकती है। Amen. Amen. Healing will come to our body, चंगाई हमारे शरीरों में आएगी, to our spirit, हमारी आत्मा to our में, mind हमारे मनों में, when we forgive. जब हम क्षमा करेंगे। Amen. आमीन। So don't keep anything in your heart for long. इसलिए लंबे समय तक अपने दिल में कुछ भी मत रखिए। Let not the sun go down upon your wrath. तेरे क्रोध के ऊपर में सूर्यास्त होने ना पाए। Amen. आमीन। Some people get into moods,
कुछ लोगों को बीच बीच में दिमाग मूड आता है, हाँ तो ठीक था बोला, दिमाग खराब होता है. दिमाग खराब होता है, They won't talk to one another for months. और वो महीनों एक दूसरे से बात नहीं करते, And they control the whole atmosphere of the house. और घर का पूरा नियंत्रण वो अपने हाथ में लेकर रखते हैं. Remember, that is a dangerous area. याद रखिए कि वो एक खतरनाक क्षेत्र है. It's not you controlling, it's the demons who are controlling. आप नहीं नियंत्रण कर रहे हैं, आपके पीछे दुष्ट आत्माएं घर के ऊपर नियंत्रण लेता है. Because God dwells where praises of people are there. क्योंकि जहां Amen. पर स्तुति होती वहां Amen. पर परमेश्वर विराजमान होता है. Hallelujah. आमेन. So don't let the sun go down upon your wrath. और इसलिए लिखा, अपने क्रोध के ऊपर में सूर्य को अस्त होने ना दे. Meaning, before the sunset, get everything right. अर्थात सूर्य अस्त होने से पहले सब कुछ ठीक कर ले. Who knows, you will not wake up the next morning. कौन जानता है कि अगली सुबह तू ना जागे. Amen. आमेन. If you are right with God, we'll wake up in that place in the morning. और यदि हम Amen. प्रभु में हैं Hallelujah. तो हम जब जगेंगे तो प्रभु में उसके साथ रहेंगे. Amen. आमेन. So examine yourself, your temper. अपने आप को जांचो, अपना गुस्सा आता है नहीं आता? Sometimes it is sitting here only. कभी कभी वो क्रोध जैसा कि नाक में बैठा है. Oof, short circuit. Put a better fuse. अच्छा फ्यूज लगाएं. Amen. And when it blasts, और जब वो फूटता है then all the senses are also numbed. और उसके बाद सारी इंद्रियां भी काम नहीं करती. Tell God, परमेश्वर से बोले, take it out from my life. मेरे जीवन से उस क्रोध को निकाल दे प्रभु. Amen. आमेन. Amen. आमेन. हेलो. हाँ, उधर से अच्छे से आमेन आ रहा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. See, it's no harm changing. Amen. बदलने में कोई नुकसान नहीं है. Others should say दूसरे कहने पाए that person changed. कि वो व्यक्ति बदल गया. Amen. Amen. That's a testimony. ये गवाही है. You shall be my witnesses. तुम मेरे गवाह ठहरोगे. Examine your own self. अपने स्वयं के जीवन को परखे. Let a man examine himself. मनुष्य अपने आप को परखे And so let him eat of this bread. और वैसे ही इस रोटी में से खाए. Hallelujah. If this can bring damnation, यदि ये दंड की आज्ञा ला सकता है it can bring a blessing तो also. ये प्यारी जीवन भी ला सकती है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Amen. This table is a table of blessing. ये मेज आशीष की मेज है. Some of you going to get healed this morning. आप में से कुछ लोग आज सुबह अपने शरीर के बीमारी से चंगे होने वाले हैं. Amen. Amen. Don't say like this. ऐसा मत बोलिएगा. If it is God's will, यदि प्रभु की मर्जी हो, it is God's will. प्रभु की मर्जी है. Amen. That you should be healed. कि आप चंगे हो जाएं. Amen. आमेन. It is written लिखा है in my name. मेरे नाम में You shall pray for the sick and the sick will recover. तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे और बीमार चंगे होंगे. Amen. आमेन. Now listen. अब सुनिए. I'm coming to the point. मैं अपने विषय में अभी आ रहा हूं. I jumped over a few points. मैं कुछ विषयों को छोड़ के आगे चला गया. Searching our own life अपने ही जीवन को परखना will reveal both good things and bad things. वो दोनों, अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को, दोनों को. Remove the bad ones. बुरी चीजों को परख कर निकाल दें Recognize the good what God has done. और पहचाने उस भले को जो प्रभु ने किया है. Amen. आमेन. The devil will not show us, the devil will only show us our bad things. शैतान केवल बुरी हम चीज जो हमारे जीवन में उसे दिखाता है. He is known as the accuser of the brethren. वो भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है. Revelations 12th chapter.
प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय 10th verse. उसकी 10वीं आयत। It says like this. यहाँ ऐसा लिखा है, And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accuseth them before God day and night. फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। Hallelujah. Amen. What is the job of the devil? शैतान का काम क्या है? Accuse the people. लोग- Accuse before God. परमेश्वर के सामने प्रभु के लोगों की गलतियों, दोष लगाना। That fellow calls himself believer, Lord, see what all things in his life. देख प्रभु, वो व्यक्ति अपने आप को विश्वासी कहता, लेकिन उसके जीवन में देख क्या क्या है। How does he do? He does it day and night. वो क्या कब करता है? शैतान रात दिन उन पर दोष लगाता है। Let's not do his ministry. हम शैतान की सेवकाई ना करें, रात दिन रात हो या दिन, सबकी बुराई कर रहे हैं. सब की बुराई कर रहे हैं। Oh, that fellow is like this. वो I don't. लड़का ऐसा है, That fellow I don't like. वो लड़का मुझे पसंद नहीं आता I है, have no time for them. मेरे पास उनके लिए समय नहीं है, I don't even bother to look at them. मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता They are हूँ। like this, like this. इस प्रकार हैं वो, Morning, evening, morning, evening, morning. सुबह Evening. और शाम, सुबह और शाम। The song doesn't finish, अब वो गाना खत्म नहीं होता है, and that is also before God. और वो भी परमेश्वर के सामने दोष लगाते। That is the job of the devil. ये शैतान का काम है, So he will try to make you feel that you are not worthy. और वो ऐसा आपको एहसास कराना चाहेगा कि आप योग्य नहीं हैं। So we got to counter him. हमें उसका विरोध करना है। If you turn to Zechariah, यदि आप जकरिया नबी की किताब खोलें 3rd chapter, और उसका 3रा अध्याय, it says there, वहाँ लिखा है 1st verse onwards, पहली आयत से आगे, And he showed me Joshua the high priest standing before an angel of the Lord, and Satan at his right hand to resist him. फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। Listen, सुनिए, this is not Joshua of that Moses' time, huh? ये मूसा के समय का यहोशू नहीं है, This is Joshua the high priest. यहाँ एक यहोशू महायाजक था। And look at the scene now. और इस दृश्य को देखिए, Joshua the high priest is standing before an angel. यहोशू of the Lord. महायाजक परमेश्वर यहोवा के दूत के सामने खड़ा है, And Satan is standing at his right hand to resist him. और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। He is against God's priest. वो परमेश्वर के याजक के विरुद्ध में था, And Satan knew certain things that he could have opposed him also. और शैतान कुछ ऐसी चीजें जानता भी था जिस आधार पे वो उस पे दोष लगा सके। But remember, परंतु याद रखिए, God will always defend his people. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है। Amen. आमीन। Jesus also defended his disciples. यीशु मसीह ने भी अपने चेलों की रक्षा की। One man came with a boy who was a lunatic, एक आदमी possessed with evil spirits. एक अपने बेटे को लेकर आया जिसको दुष्ट आत्मा गिराती थी, And Jesus had gone to the mount और to यीशु pray with मसीह 3 of his disciples, अपने 3 चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे था, and the rest of the disciples were down. और बाकी जो चेले थे वो नीचे थे, And they could not cast out the demon. और जो नीचे चेले थे
वो उस पिता के उस बेटे को चंगा नहीं कर पाए। So when the Lord came down, a lot of crowd had gathered. लेकिन जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर रहा था तब तक यहाँ बहुत भीड़ लग गई थी। And the scribes are questioning the disciples. और जो फरीसी थे, शास्त्री, चेलों से सवाल कर रहे थे Why you couldn't cast it out? कि तुम क्यों इस लड़के से दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए। Immediately Jesus comes and takes over. तुरंत यीशु मसीह वहां पर आकर उसने चीजों को अपने हाथ में लिया। Talk to me. जैसे कि मुझसे बात करो। Amen. आमेन। When Satan comes to accuse us, जब शैतान हमें दोष लगाने आता है, God tells him, परमेश्वर से बोलता है, you talk to me, he is my man. तू मुझसे बात कर, वो मेरा मनुष्य है। Hallelujah. आमेन। Read the second verse. दूसरी आयत पढ़ें। And the Lord said unto Satan, the Lord rebuked thee, O Satan. Even the Lord that chosen Jerusalem rebuked thee. Is not this a brand plucked out of the fire? तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकली लुकटी सी नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord rebuke you, Satan. शैतान, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। For whom? किसके लिए? For his man. अपने मनुष्य के लिए। Now the third verse says, अब तीसरी आयत, fourth verse says, चौथी आयत कहती है, no, third verse. Now तीसरी- Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। That is the reason Satan had some advantage. और यही कारण था शैतान को मौका मिला। He has not specified what it was. यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो मैल वो किसका था। Remember, याद रखिए, Bible says your righteousness is like filthy rags. बाइबल में लिखा है कि हमारी धार्मिकता मैले और चिथड़ों के समान है। When we stand before God जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते in हैं our own righteousness, अपनी स्वयं की धार्मिकता में, it is like filthy rags. वो मैले और चिथड़ों के समान है। Amen. आमेन। We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, I need thee. मुझे तेरी जरूरत है। Oh, I need thee. हाँ प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। My one defense, मेरी एक ही रक्षा है, your righteousness. तेरी धार्मिकता। Amen. आमेन। We are clothed with Christ's righteousness. हम मसीह की धार्मिकता धारण किए हैं। Amen. आमेन। Not only God said rebuke you, Satan, ना केवल परमेश्वर ने कहा यहोवा तुझे घुड़के, but he says परंतु कहता है change his garments. कि इसके ये मैले वस्त्र उतारो। And he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And unto him he said, behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment. तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The clothes of unrighteousness. अधर्म के मैले वस्त्र। How privileged we are. हम कितने सौभाग्यशाली। Amen. आमेन। Christ has become our righteousness. मसीह यीशु हमारी धार्मिकता बना है। He who knew no sin became sin for us. वो यीशु जो पाप को जानता भी नहीं था, वो हमारे लिए पाप ठहर गया, We might become righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Amen. आमेन। Now we have to confront the enemy, the devil. और अब दुश्मन का सामना करने के लिए God confronted him. परमेश्वर ने सामना किया The Lord rebuke you, Satan. और कहा, प्रभु तुझे घुड़के शैतान, This is mine. ये मेरा है। Hallelujah. आमेन। You want to see the change? तू परिवर्तन को देखना चाहता है Stand here and I will show you how I can change that man. तो यहाँ खड़ा हो और देख कि मैं अपने जन को कैसे बदल देता हूँ। Hallelujah. Amen. Take away that rotten garment from his और उस life. दूत ने कहा, उसके ये मैले वस्त्र उतारो, Put off the old man. पुराने मनुष्यत्व को
उतार डालो, Put on the new man. नए मनुष्य को धारण कर लो। The scripture says, put on Jesus Christ. बाइबल कहती यीशु मसीह को धारण कर लो, Make no provision for the flesh. और शरीर के लिए कोई भी विकल्प मत रखो। Amen. आमेन। We walk into God's presence because of Christ's righteousness. हम मसीह की उपस्थिति में उसकी धार्मिकता के कारण प्रवेश करते हैं। The accuser of the brethren, let him accuse. भाइयों पर दोष लगाने वाले शैतान को दोष लगाने दो। But if God be for us, who can be against परंतु us? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया। He is the one who rebukes the devil. वही है जो शैतान को घुड़कता है। He is the one who changes our garments. वही है जो हमारे वस्त्र बदलता है। He is the one who tells the devil to get out from वही है it. जो शैतान से कहता है कि वहां से दूर चले जा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Lord, I come प्रभु मैं आता हूँ and I confess. और मैं मान लेता हूँ। Amen. आमेन। What a song that is. वो गीत जो कहता है It's time to know who you are in Christ. अब समय आया है मसीह में हम कौन है जानने का। Amen. आमेन। We know what we are before God. हम स्वयं जानते हैं प्रभु के सामने हम क्या हैं। Many times that phrase is repeated again and again. बहुत सी बार वही चीज बार बार दोहराई जाती है। Know ye not. क्या तुम जानते नहीं? Meaning, अर्थात the church or a believer is in ignorance. कि विश्वासी और कलीसिया अज्ञानता में है, And that is why we are unable to receive from God what He has for us. और इसलिए हम उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Know ye not. क्या तुम जानते नहीं? Know ye not your own selves? क्या तुम अपने आप को नहीं जानते? Same verse we read, 2 Corinthians 13:5. दूसरा कुरिन्थियों 13 और उसके 5 में लिखा है, Examine yourself whether you are in the faith. Prove your own selves. अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने ही विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? Know ye not your own selves? क्या तुम अपने विषय में भी ये नहीं जानते How Jesus Christ is in you. कि यीशु मसीह तुम में है? Hello? Hello? Thank you, Jesus. Amen. Amen. It's time to talk back. ये समय है मुड़कर प्रभु से बात करने का। Talk back to the devil. शैतान से नहीं, Talk back to the devil. शैतान को घुड़के Tell him. उससे कहें, Tell him your position. अपनी स्थिति से उसको अवगत कराएं। Who am I? मैं कौन हूं? Amen. आमेन। Nowadays you find everybody saying, phone लगाऊं? आजकल बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं फोन लगाऊं? रुको बात करा देता हूं. रुको बात करा देता हूं। Because he has got some big fellow. जैसे उसके पास में कोई बड़ा व्यक्ति है। We can also say, हम भी कह सकते हैं रुको रुको बात कराता हूं. बात कराता हूं। Hallelujah. Amen. Amen. God will speak for us. परमेश्वर हमारी ओर से बोलता है। Know ye not? क्या तुम जानते नहीं? Christ is in you. तुम में मसीह का वास है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. You are only thinking of carnal things, fleshly things. केवल शारीरिक चीजों के विषय में सोच रहे हो। Greatest treasure is in your life. तुम्हारे जीवन में बड़ा खजाना रखा है। The day you accepted Christ as your personal जिस दिन Savior, तुमने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता the day you were born again, जिस दिन तूने नया जन्म पाया, Christ came to live in us. मसीह यीशु हमारे अंदर वास करने Look आया। inside. अपने अंदर झांको, He is there. वो वहां है। Hallelujah. हालेलुया। Everybody will leave you, friend. हर एक जन दोस्त आपको छोड़ देगा। The best friend will leave you. सबसे अच्छा दोस्त भी Christ will never leave. यीशु मसीह कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You will find it in your life. आप अपने जीवन में इस बात को पाएंगे, The one whom you trusted so much. जिस पर आप इतना भरोसा करते थे। Even sometimes your own very close husband and wife maybe. कभी कभी हो सकता है पति को या पत्नी को। Nobody can be more closer than Jesus himself. यीशु मसीह के खुद से बढ़कर और पास कोई नहीं हो सकता। There is a friend एक मित्र है
Hallelujah. Who sticks closer than a brother. जो भाइयों से भी बढ़कर करीब रहता है। Amen. What a friend we have in Jesus. यीशु मसीह में हमने कैसा एक दोस्त पाया है। We're looking all around all other things than Christ himself. हम तमाम दूसरी चीजों को देख रहे हैं सिवाय यीशु को छोड़। Look inside. अंदर देखें, He lives in you. वो आपके अंदर यीशु का वास है। Hallelujah. हालेलुया, Glory to God. प्रभु को महिमा। Tell the devil, शैतान से बोले, look inside me. मेरे अंदर देख। It's not me, मैं नहीं, but Christ who lives in me. मसीह यीशु मुझ में वास करता है। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमीन। Know ye not? क्या तुम जानते नहीं You are the temple of the Holy Ghost. तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। 1 Corinthians 3:16. 1 कुरिन्थियों 3:16। Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Amen. आमीन। You? आप, Yes, me. मैं I हूं। Yes, I know. मैं जानता हूं, I am the temple of the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। Amen. आमीन। However, maybe imperfect I may be, चाहे मैं कितना भी कमजोर या असिद्ध क्यों ना हूं, the one who dwells in me, लेकिन जो मेरे अंदर वास करता है he is perfect. वो तो सिद्ध है। Amen. आमीन। And he will change my life. और वो मेरे जीवन को बदलता है। Listen, सुनिए, some people pray, Lord, they think after they become perfect, the Holy Ghost will come. वो सोचते हैं जब वो सिद्ध हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा आएगा। तो क्या करेगा आगे? फिर पवित्र आत्मा क्या करेगा? He comes to make us perfect. वो इसलिए आता है कि वो हमें सिद्ध बनाए। Amen. आमीन। It's not that when we become very good and righteous. ऐसा नहीं जब हम अच्छे हो जाएं, बहुत धर्मी हो जाएं। No, tell me, मुझे बताइए, how you receive salvation? आप उद्धार को कैसे पाए? After you became perfect, you receive salvation? क्या आप सिद्ध बनने के बाद, अच्छा आदमी बनने के बाद उद्धार मिला, Or या फिर because you were sinner, क्योंकि आप एक पापी दशा में you थे, accepted Christ आपने उस दशा में यीशु को ग्रहण किया and you got saved? और आपको उद्धार मिला। Amen. आमीन। After Christ came, मसीह के आने के बाद you got saved. आप उद्धार पाए। Amen. Amen. It's not that you saved yourself and came to Christ. ऐसा नहीं कि आपने अपने आप को ही नया जन्म दिया, उद्धार दिया और फिर यीशु के पास आए। Salvation is free. उद्धार मुफ्त है, It is not cheap. सस्ता नहीं है, It is free. परंतु मुफ्त है। By grace, अनुग्रह से you are saved हमारा उद्धार हुआ, through faith. विश्वास करने से। Grace, अनुग्रह unmerited favor. ऐसी चीज, ऐसा अनुग्रह, ऐसा लाभ जिसके हम योग्य नहीं। We got 0. हमको शून्य मिला, He put 110 in front. उसने उसके सामने 10 लिख दिया। God's ways are different to man's ways. परमेश्वर के काम करने के तरीके मनुष्य के तरीके से अलग है। Lose your life, you will find it. कहता है अपने जीवन को जो देगा वो उस जीवन को बचाएगा। Give and it shall be given. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। It's all opposite the world. दुनिया के रीति से बिल्कुल उल्टा, विपरीत है। He chosen the foolish things of the world. परमेश्वर ने जगत के अच्छों को नहीं परंतु मूर्खों को चुन लिया। He is our creator. वो हमारा सृष्टि करता है, He will make us वो हमें बनाएगा like Jesus Christ. मेरा यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Know ye not? क्या तुम जानते नहीं, Spirit of God dwells in you. परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। Amen. आमीन। Now और अब we have to learn to give him space to work in our life. हमें अपने जीवन में काम करने उस आत्मा को जगह देनी है। Don't choke him in one room. एक कमरे में उसे रोक ना लें, Allow him space to move in all our faculties. अपने सारे जीवन में उसको काम करने अनुमति दें।
Amen. Amen. Our thought life. हमारे विचार का जीवन, Whatever, our words, हमारे शब्द they control. नियंत्रित किए जाएं. When He takes control, जब पवित्र आत्मा नियंत्रण we will लेगा, become like the Lord Jesus हम Christ. अपने प्रभु यीशु के समान बन जाएंगे. Know in heart. क्या तुम जानते नहीं? Oh, yes, I know. हाँ, मैं जानता हूँ. I am the temple of the Holy मैं Ghost. पवित्र आत्मा का घर हूँ. Amen. Amen. Tell the devil, शैतान को भी कह दे, Spirit of God dwells in me. प्रभु की आत्मा मुझ में वास करती है. I am not perfect today. मैं आज सिद्ध नहीं हूँ, Tomorrow, लेकिन आने वाले दिन I'll come out मैं निकल आऊंगा glorious. महिमामय रूप में. Hallelujah. Hallelujah. And God is through with me. और जब परमेश्वर मेरे जीवन में अपने कार्य को पूरा कर ले. Amen. आमेन. Remember, याद रखें. I'm jumping again. One thing, एक बात, Jesus, his work on the cross was complete. यीशु का क्रूस का जो कार्य था वो पूरी तरह से पूरा था. Spirit, soul, mind and body. Jesus died for शरीर, us. प्राण, आत्मा, मन सब के लिए यीशु ने अपनी जान दी थी. Okay? It is so easy for us to accept him as a personal savior for the forgiveness of our sins. इतना आसान है अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना. Amen. Yet people find it difficult sometimes. तो भी कुछ समय लोगों को यीशु पर विश्वास करना मुश्किल लगता है. Same faith is for our healing. वही विश्वास चंगाई के लिए भी चाहिए. Amen. आमेन. Listen. सुनिए, Beginning was the word. आदि में वचन था. Word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था. Word was God. और यही वचन परमेश्वर था. Word became flesh. यही वचन देहधारी हुआ, Dwelt among us. हमारे बीच में डेरा किया. Amen. Amen. Listen. सुनिए, If word of God is God यदि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है and we receive the word inside, और उस वचन को जब हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं healing will come. तो चंगाई आना ही है. Hallelujah. Amen. 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 Because God's word can never be passed away. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता. God cannot pass away. परमेश्वर नहीं टल सकता. God cannot lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता. He said, उसने कहा healing is yours. चंगाई तुम्हारी है. Amen. आमेन. You are the temple तुम मंदिर हो, of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के मंदिर. Again, फिर से 1 Corinthians 6:19 says, पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost who is in you, क्या तुम which you have of God, you are not your own. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो. Your body, तुम्हारी देह. amen, आमेन. don't get it tattooed. उस देह में कोई टैटू ना करें. One man, एक मनुष्य, Brother Carlton used to tell us, ब्रदर कार्ल्टन बताते थे, he had all filthy pictures of tattoo on his body. उसने अपने शरीर में तरह तरह के खराब चित्रों को बनवा लिया था. He got saved लेकिन एक दिन उस आदमी का उद्धार हो गया and he was so ashamed of what was on him. और वो रोज लज्जित होता था उन चीज़ों के कारण जो उसने अपने शरीर में गुदवा लिया था. But a miracle happened. लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म उसके साथ हुआ. When he came out of the waters of baptism, जब वो पानी के बपतिस्मे को लेकर बाहर निकल रहा था, all tattoos disappeared. उसके तमाम वो टैटूज चले गए. Amen. आमीन. So if you don't have one, don't get one. यदि आपके ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है तो अब उसे ना करें. Devil loves to take out blood from your body. शैतान आपके शरीर से खून निकालना चाहता है. That's another story. वो एक अलग कहानी है. Your body आपकी देह is the temple of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का मंदिर है. And Bible says, और बाइबल कहती है who is in you? जो तुम्हारे अंदर है, तुम में बसा हुआ है. Basa hua. Hallelujah. Amen. Who is inside?
कौन बसा हुआ है? The Holy Ghost पवित्र आत्मा, is inside me. वो मेरे अंदर वास करता है। And then he goes on to say, फिर कहता, which you have received of God, और ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, you are not your own. और तुम अपने नहीं हो। Amen. So we can't do what we like. इसलिए हम जैसा चाहें वैसा नहीं कर सकते। Your greatest enemy is just not the devil, it is our flesh. आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान मात्र नहीं है, परंतु आपका अपना ही शरीर है। Sometimes we are blaming the devil for everything. कभी कभी हम शैतान को ही हर चीज के लिए दोष देते हैं। खुद पेट्रोल नहीं भराया, गाड़ी बंद हो गई. खुद स्वयं पेट्रोल नहीं भराने से गाड़ी बंद हो गई, This devil has done it. और हम शैतान को बोलते उस शैतान के कारण हुआ है। It's your mistake. वो आपकी गलती थी। You kept the gas burning, आपने गैस को खुला छोड़ दिया, the milk became into pudding, और जो दूध था वो पुडिंग में तब्दील होने लगा। then it became crispy. उसके बाद वो सूख गया। The devil has done it. और हम बोलते हैं शैतान ने नुकसान कर दिया। You went back on your phone, आप फोन को लेकर बैठे थे, दूध उबल रहा था. दूध उबल रहा था। Don't blame the devil. शैतान को कृपया दोष ना दें। Your enemy is your own flesh, आपका स्वयं का दुश्मन आपका शरीर है, your own thinking. आपका स्वयं का सोच। That's why Paul said, I beat my body. और इसलिए पौलुस कहता, मैं अपने शरीर को मारता कूटता, Lest having preached to others, I myself be out. ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं स्वयं भी बाहर निकाल दिया जाऊं। Benny Hinn is giving his testimony. पास्टर बेनिहिन अपनी गवाही को दे रहे थे। He says one dream he had and he dreamt something उन्होंने कहा about एक heaven. सपना देखा और स्वर्ग के बारे में उन्होंने कुछ दर्शन पाया। So many are going to heaven and some were pulled out. बहुत से स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन कुछ को वहां से पीछे निकाल दिया गया। Then he woke up तब वो उठे and he heard a voice saying, और एक आवाज को सुना, you don't blow up. तुम ज्यादा ना फूलना, Don't mess it. तुम चीजों को खराब मत करो। Such a great man. इतना महान आदमी। What about us? हमारे विषय में क्या है? One defense, एक रक्षा है, God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता है, Hallelujah. Amen. That will take us through. जो हमें लेकर जाएगा। We belong to Christ. हम मसीह के हैं। Amen. आमीन। You're not your own. तुम अपने स्वयं के नहीं हो। Then if you're not your own, then who you belong to? यदि आप स्वयं के नहीं हैं तो आप किसके हैं? Christ. मसीह यीशु के। Acts of the Apostles, 28th chapter. प्रेरितों के काम का 28 अध्याय, 20, 20 अध्याय 28th verse. और उसके 28 आयत, 20 का 28। Paul is talking to the Ephesians elders पौलुस इफिसियों के पुरनियों से बात कर रहा था and he says like this, और उनसे ऐसा कह रहा था, take heed to yourself and to the flock which the Holy Ghost has made you overseers. इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, To feed the church of God which he purchased with his own blood. कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Amen. आमीन। You're not your own. तुम अपने स्वयं के नहीं हो। Then listen to what God has to say. फिर जिसका है अर्थात परमेश्वर की सुने उसे क्या कहना है। 1 Peter 1:18 says, एक पत्रस 1:18 कहता है, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. परंतु तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। You know, आप जानते हैं, Peter is writing. पत्रस लिख रहा है, तुम लोग जानते हो। Amen. आमीन।
He's not saying, no, you not. वो ये नहीं कह रहा कि तुम लोग को मालूम नहीं है, You know. कह रहा है तुम्हें मालूम है। You are not saved with corruptible things as silver and gold. तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, But by the precious blood of Jesus. परंतु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। Christ has redeemed us मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, from the curse of the law. उस व्यवस्था के श्राप से बचाया है। Amen. आमीन। It is written, everyone who hangs on the tree is cursed. लिखा है हर एक मनुष्य जो क्रूस पे चढ़ाया जाता है वो श्रापित ठहरता है। Who are you? आप कौन हैं? Amen. आमीन। Sons and daughters of the living God. जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। Amen. आमीन। Chosen generation. एक चुनी हुई पीढ़ी, Royal priesthood. राजपदधारी याजक, A peculiar people. एक विशेष प्रजा। Know who you are. जाने आप कौन हैं। Once you know that, एक बार जब उसे आप जान लेंगे, then you will be able to exercise the authority which God has given you. तब आप उस अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको दिया इस्तेमाल कर पाएंगे। It's not legal to put on a uniform without being gone through the whole process. पूरी प्रक्रिया से बिना गुजरे कोई वर्दी नहीं पहनी जाती है। You cannot wear a police uniform. आप पुलिस का वर्दी खरीद कर पहन नहीं सकते। You can, but it's not legal. आप पहन लेंगे लेकिन वो वैध नहीं होगा। You cannot put an army uniform when you're not in the army. आप सेना का कपड़ा नहीं पहन सकते यदि आप खुद सेना में नहीं है। Just for shifting time, I cleaning up things in the house. घर बदली करते समय मैं कुछ चीज़ों को अभी देख रहा था। Took out dad's medals. मेरे पिता के जो पदक थे, Rows of medals. और ढेर सारे पदक उसमें लगे थे। Not only that, ना केवल इतना, my father's granddad's medals also. मेरे पिताजी के जो पिता थे उनके भी। You cannot put it on. आप उसको लगा नहीं सकते They have gone through the process. क्योंकि वो उस प्रक्रिया से गुजर के पाए हैं। Amen. आमीन। We have a more better uniform than that one. हमारे पास उससे भी बेहतर एक वर्दी आज है। Put on Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो। Hallelujah. Amen. आमीन। And the devil knows the authority in the dress. और शैतान उस अधिकार को जो उस वस्त्र में जानता है। Just there on the corner, the police fellows are standing there to do some checking. कोने में पुलिस वाले वहां खड़े हैं चेकिंग करने। If they are standing in civilian clothes, nobody will stop. यदि वो सामान्य वस्त्रों में खड़े हो जाएं तो कोई भी गाड़ी रोकेगा नहीं। However insignificant and less educated that man might be, लेकिन वर्दी पहनना हुआ वो आदमी कितना भी अशिक्षित, कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, behind the dress उस कपड़े के पीछे is the power of the government. सरकार क्या अधिकार झलकता है। That's why when he says like this, इसलिए जब वो अपने हाथ को ऐसे दिखाता है we also stop our vehicles. तो सब हम भी अपने गाड़ी को रोक देते हैं। Devil knows you. शैतान भी आपको जानता He recognizes you by your clothes you wear. है। जो कपड़ा पहनते हैं Amen. यीशु का, उसके कारण वो आपको जानता है। Hallelujah. आमीन। As many as received him, to them gave he the power to become the sons of God. जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। John 1:12. यूहन्ना 1:12। We all know that. हम सब उसे जानते हैं। To them gave he the power. उन्हें उसने सामर्थ अधिकार दिया। Amen. आमीन। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Listen one more time. एक और बार सुनिए। You can put your name there आप अपना नाम वहां डाल सकते हैं where it is written to them. जहां पर लिखा है उसने उन्हें अधिकार दिया। To me he has given me the power उसने मुझे वो अधिकार दिया है to become the sons of God कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाऊं, who are not born of the flesh जो शरीर से नया जन्म नहीं पाए but born of the Spirit. परंतु पवित्र आत्मा से जन्माए गए। Hallelujah. आमीन।
Amen. आमेन। Who you are? आप कौन हैं? You are a spirit being. आप एक आत्मिक प्राणी हैं, Because God is spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। And we are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हैं, Become spirit being. आत्मिक प्राणी बन जाएं। He breathed upon us. उसने हमारे ऊपर अपनी जीवन की श्वास फूकी, Man became a living soul. मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the breath of God. परमेश्वर की वो श्वास, The power of God. परमेश्वर की सामर्थ He put it in you. उसने आपके अंदर ढाला है। What are you doing about it? आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? Because you are the sons. क्योंकि आप बेटे हैं। Galatians 4:6 says, गलातियों 4:6 कहता है, because you are sons of God, He has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। Because you are sons क्योंकि and तुम daughters of God, परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्रियां हो, God has sent His Spirit of His Son इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को भेजा है into our hearts. हमारे हृदयों में। You are reading that. हम उसे पढ़ रहे हैं। Amen. आमेन। Where? कहाँ? Not into the mind, मन में नहीं, into the heart, उसके हृदय में, by which we call God our Father. और जिसके द्वारा हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Remember. याद रखें, Old Testament time they trembled. पुराने नियम के समय वो कांपते थे, They could not call God Father. परमेश्वर को अपना पिता नहीं कहते थे। Moses could not call God Father. मूसा परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं बोल सकता था। Abraham could not call God. अब्राहम उसे पिता नहीं बोल सकता था। Isaac and Jacob could not call. इसहाक और याकूब उसको अपना पिता नहीं बोलते थे। We, लेकिन नए नियम में हम, because Jesus did it for us, क्योंकि जो यीशु मसीह ने किया उस कारण we can come to God हम परमेश्वर के पास आ सकते and हैं say, Abba, Father. और उसको Amen. अब्बा पिता कहकर पुकार सकते। You may be fatherless हो सकता है कि आप के पिता नहीं हैं on this earth, इस पृथ्वी पर, or maybe your father has left you. या आपके पिता ने आपको त्याग दिया है। There is a Father in heaven. याद रखें, स्वर्ग में आपका एक स्वर्गीय पिता जीवित है, You can talk to Him. जिससे आप कभी बात कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us. देखो पिता ने हमारे ऊपर कैसा प्रेम उंडेला है We should be called the sons of God. कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। 1 John 3, 1 1. यूहन्ना 3:1 में और 2 में लिखा है। Amen. आमीन। Amen. Beloved, प्रियो, second verse says, दूसरी आयत कहती है, now are we the sons of God. अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। Not what we shall be. We are now हम होंगे नहीं, परंतु अब हैं sons of God. परमेश्वर के पुत्र। And we are waiting for that time when He comes, we will be like Him. और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब प्रभु आएगा, हम उसके समान होंगे। Sons of God. परमेश्वर के बेटे, संतान। Amen. आमीन। Then और तब you have the authority. आपके पास अधिकार है। Scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, Jesus became righteousness for us. यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गया। We are complete in Him. हम मसीह में संपूर्ण हुए हैं। Not we will be, हम होंगे नहीं, that is different. वो अलग है, Now, परंतु अब in Christ we are complete. मसीह यीशु में हम संपूर्ण हैं। That you read in Colossians 2nd chapter 10th verse. कुलस्सियों 2 और उसके 10 में हम उसे पढ़ते हैं, You are complete in Him, तुम उसमें भरपूर हो गए हो, who is the head of all principalities and powers. जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। If यदि He is above all principalities and powers, यदि वो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है and we are complete in Him, और हम उसमें भरपूर हैं, meaning अर्थात
These principalities and powers are under us. ये प्रधानताएं और ये अधिकार सब हमारे अधीन नीचे है। Amen. आमेन Amen. आमेन समझे कि नहीं? Amen. आमेन। Now God sees us, he doesn't see any problem. परमेश्वर हमको देखता है और उसको हमारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं दिखती। Finished work of Christ. मसीह का कार्य पूरा हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। We are putting on Christ. हम मसीह को धारण करते हैं। What can he see? Only Christ. क्या दिखेगा मसीह को छोड़? Christ in you, the hope of glory. मसीह जो तुम में है, महिमा की आशा है। Amen. आमेन। Examine yourself अपने आप को परखो, whether you are in the faith. विश्वास में हो या नहीं। Listen, सुनिए, after receiving all what God has given, मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद, जो कुछ उसने दिया उस सबको पाने के बाद, we need to take the benefit out of it. हमें उससे लाभ लेने की जरूरत है। I don't think God had a graph like this for man. मुझको नहीं लगता कि परमेश्वर ने जब मनुष्य के बारे में सोचा तो उसने ऊपर नीचे जाने वाले ग्राफ, उसकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे नहीं सोचा है। We sing like that. हम वैसे गाते हैं, God of the mountains, God of the valley. परमेश्वर जो पहाड़ों का है वो तराई में भी परमेश्वर है। His work is perfect. लेकिन परमेश्वर का काम ऊंचा नीचा नहीं है, उसका काम सिद्ध है। Amen. आमेन। So should our life be like this. क्यों ना हमारा जीवन भी ऊंचाइयों में ही रहे। Amen. Amen. I will not make you the tail, प्रभु कहता, मैं तुझे पूंछ नहीं बनाया, the head. सिर बनाया। Who said that? किसने ये कहा था? God said it. परमेश्वर के मुख की Now वाणी। will God tell lies? क्या परमेश्वर कभी बोलता है तो He झूठ बोलता cannot. है? वो झूठ नहीं बोल His सकता, truth. वो सत्य है। Then it should be like that. यदि सत्य है वैसा ही होना चाहिए। Amen. Amen. We are sitting with Christ in heavenly places, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हैं, not watching IPL. आईपीएल नहीं देख रहे हैं। Amen. आमीन। You sit to rule. राज करने ऊंचे स्थानों में हम बैठे हैं। He's made us kings and priests unto himself. उसने Hallelujah. हमें अपने साथ में राजा Hallelujah. और याजकों के रूप में बनाया है। Amen. आमीन। So what you say इसलिए आप जो कहेंगे, in Bilaspur, it will happen. बिलासपुर में जो कहेंगे वो इस शहर में पूरा होगा। Amen. Amen. You say something over this country, आप इस देश के ऊपर जो बोलेंगे it will happen वैसा ही होगा, because you are sitting with Christ in that क्योंकि position. आप बैठे हैं मसीह के साथ ऊंचे स्थानों में। Amen. आमीन। But don't let your eyes come out of Jesus. लेकिन आप अपनी आंख को यीशु मसीह से अलग मत करिए। We shall see him very soon. हम जल्द उसे देखेंगे, We shall see Jesus हम यीशु को देखेंगे just as they saw him. वैसा ही जैसा उन दिनों में उन लोगों ने देखा No था। greater promise इससे बढ़कर कोई वायदा नहीं like this. जो उसने लौटने का दिया। One day he's coming. कि एक दिन जल्द वो आने वाला है। What a glorious day. क्या महिमा में दिन होगा। Amen. Amen. आमीन। Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहा है। Thank God for the houses we have here. प्रभु का धन्यवाद उन घरों के लिए जो हमारा यहाँ इस But दुनिया just में। build my mansion लेकिन मैं अपने उस विशाल घर को बनाऊंगा next door to Jesus. यीशु के जो घर है उसके Hallelujah. बगल से लगाकर। Hallelujah. Amen. Tell the angels, स्वर्गदूतों से कह दो I'm coming home. मैं घर जल्द आ रहा हूँ। Be like Jesus. यीशु के समान हो जाएं, Change our life. ते जीवन को पूरा बदल जाए। I must search myself. मुझे अपने आप को जांचने की You search जरूरत है। yourself. आप अपने आप को जांचें। Let us be clean. हम प्रभु के सामने साफ हो जाएं। Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We shall see Jesus just as the saw him. Oh, wait the promise greater than this. Someday is coming, thousand with the glory.
we shall see Jesus just as He is. We shall see Jesus